السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان سمیت دنیا بھر کے 180 سے زیادہ ملکوں میں کورونا وائرس کا خوف دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ابھی تک 2.81 کروڑ لوگ دنیا بھر میں اس سے متاثر ہوئے ہیں اور 9,09,000 سے زیادہ لوگ اس سے اپنی زندگی گنوا چکے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کیسز روزانہ ایک نیا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 97,570 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ یہ ایک دن میں سامنے آنے والے ابھی تک کے سب سے زیادہ کیسز کی تعداد ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری اپ ڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں اب تک جملہ کیسز 46,59,984 ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم نے جموں کشمیر بابری مسجد انہدام اور ایودھیا میں رام مندر تعمیر کو لے کر تبصرہ کیا، جس کی ہندوستان نے سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ہندوستان نے بھی پاکستان کو بھرپور جواب دیا۔ پہلے تو ہندوستانی نمائندے نے پاکستان کو تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنے ملک میں اور سرحد کے پار تشدد کے کلچر کو فروغ دیا ہے، اور پھر مذہبی اقلیتوں کو لے کر پاکستان کے رویے کو بھی سب کے سامنے رکھ دیا۔ دراصل اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مشن کی کونسلر پاولومی ترپاٹی کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں امن کا کلچر موضوع پر ایک پروگرام سے خطاب کر رہی تھی۔ اسی دوران انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم نے پاکستان کے نمائندے وفد کے ذریعے اقوام متحدہ کے اسٹیج کا استعمال ہندوستان کے خلاف نفرت آمیز تقریر کرنے کی ایک اور کوشش کو دیکھا۔ ترپاٹی نے کہا کہ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان اپنے ملک میں اور سرحد پار تشدد کے کلچر کو فروغ دے رہا ہے۔ ہندوستان اور چین نے مشرقی لداخ میں 4 ماہ سے جاری فوجی تعطل کو دور کرنے کے لیے 5 نکات سے اتفاق کیا ہے، جس کے تحت جلد سے جلد سپاہیوں کو پیچھے ہٹایا جائے گا۔ ایسی کارروائی سے گریز کیا جائے گا جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہو اور حقیقی خطے قبضے پر پرامن اور ہم آہنگی بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی نے پارٹی میں بڑے پیمانے پر ردبدل کرتے ہوئے غلام نبی آزاد، موتی لال ووہرا، امبیکا سونی اور ملکارجن کھڑگے کو AICC کے جنرل سیکریٹریز کے عہدوں سے ہٹا دیا اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تشکیل جدید عمل میں لائی، اور پی چدمبرم، رندیپ سرجیوالا، طارق انور اور جتیندر سنگھ کا اس کے ریگولر ارکان کی حیثیت سے تقرر کیا۔ JEE مینز 2020 کے امتحانات میں مجموعی طور پر 24 امیدواروں نے 100% اسکور حاصل کیا ہے۔ NTA نے جمعے کی دیر رات JEE مینز کے نتائج کا اعلان کیا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے متعدد مواقع پر ملتوی ہونے کے بعد اس سال JEE مینز میں 8,67,000 سے زائد طلبہ شامل ہوئے تھے، جو یکم سے 6 سپٹمبر تک منعقد ہوئے تھے۔ سدرشن ٹی وی کے متنازع پروگرام نوکرشاہی جہاد کو مرکز کی جانب سے کلین چٹ ملنے کے بعد ہائی کورٹ نے اس کے نشر پر پابندی عائد کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ اس تعلق سے داخل کی گئی پٹیشن پر عدالت نے چینل کو نوٹس جاری کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام کا پرومو منظر عام پر آتے ہی ملک کے انصاف پسند حلقوں میں بے چینی پھیل گئی تھی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء کی پٹیشن پر دہلی ہائی کورٹ نے اس کے نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ بہرحال مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات نے یہ کہتے ہوئے پروگرام کو نشر کرنے کی اجازت دے دی ہے کہ کسی بھی پروگرام پر اس کے نشر ہونے سے پہلے ہی سینسرشپ نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی مرکزی حکومت نے چینل کے سربراہ سریش چوہان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ شو میں طے شدہ پروگرام کوڈ کی خلاف ورزی نہ ہو۔ واضح ہے کہ UPSC امتحانات میں مسلم طلباء کے قدر بہتر نتائج کو سریش چوہان کے نے نوکرشاہی جہاد کا حصہ قرار دیا ہے۔ شیو سینا پر اپنے نظریات سے سمجھوتا کر کے پارٹی کو شیو سینا کے بجائے سونیا سینا بنا دینے کا الزام لگانے کے بعد فلم اداکارہ کنگنا رناوت نے پھر کانگریس صدر کو اس تنازع میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اس معاملے میں سونیا گاندھی کی خاموشی پر سوال اٹھاتے ہوئے کنگنا رناوت نے کہا ہے کہ آپ کی بے توجہی اور خاموشی پر تاریخی فیصلہ کرے گی۔ اپنے دفتر پر BMC کی انہدامی کارروائی کو کنگنا نے ریاستی حکومت کی ہراساں کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اپنے ٹویٹس میں انہوں نے سونیا گاندھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہاراشٹر میں آپ کی حکومت نے میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اس پر ایک خاتون ہونے کے ناطے کیا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ اپنی حکومت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بابا صاحب کے ذریعے دیے گئے آئین کے اصولوں پر عمل کریں۔ کنگنا پر منشیات کے استعمال کے تعلق سے عائد ہوئے الزامات کے بیچ مہاراشٹر حکومت نے اس کی جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ ممبئی پولیس کو اس تعلق سے ریاستی وزارت داخلہ کی جانب سے ہدایت مل گئی ہے۔ اس کی تصدیق ایک سینئر پولیس افسر نے کی اور بتایا کہ اس کی جانچ کرائم برانچ کرے گی۔ تفتیشی ایجنسی نے منشیات کے کاروبار میں ملوث ہونے اور اس کا استعمال کرنے کے جرم میں گرفتار اداکارہ ریا چکرورتی اور اس کے بھائی شووک کا ریمانڈ تو نہیں، مگر اس نے حیرت انگیز طور پر ان کی رہائی کی بھی مخالفت کی ہے، جس کے بعد سیشن کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ ریا اور اس کے بھائی کے ساتھ ہی ساتھ اس کیس کے دیگر ملزمین ضمانت کی درخواستوں کو بھی عدالت نے نامنظور کر دیا ہے۔ حقوق انسانی کے علمبردار، سرگرم سماجی کارکن اور آریہ سماج کے لیڈر سوامی اگنی ویش جمعے کو 80 سال کی عمر میں نئی دہلی میں انسٹی ٹیوٹ آف لیور اینڈ بلیڈی سائنس میں انتقال کر گئے۔
वो लीवर के आर्जे में मुब्तला थे और हालिया कुछ दिनों से इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अस्पताल की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक इनकी हालत जुम्मे को मजीद बिगड़ गई और शाम 6 बजे इन्हें दिल का दौरा पड़ा। इन्हें बचाने की कोशिश की गई मगर 6:30 बजे वो इंतकाल कर गए। आंध्र प्रदेश में एक ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए अग्निवेश हुकूक इंसानी के लिए पेश रहते थे और हिंदुस्तानी मुसलमानों के मसाइल पर भी खुलकर आवाज़ बुलंद करते थे। इन्हें खास तौर से बंधुआ मजदूरी के खात्मे के लिए चलाई गई इनकी तहरीक के हवाले से याद किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में जब से कंगना रनावत ने बयानबाजी शुरू की और बॉलीवुड अदाकार ने चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के खिलाफ गैर मुहज़्ज़िब जबान इस्तेमाल की, तब से सीएम के खिलाफ कार्टून्स बनने लगे हैं। उद्धव ठाकरे की मुखालिफत में एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा ने एक कार्टून शेयर किया जिसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। 65 साल मदन शर्मा को बरसर इख्तिदार शिवसेना के कारकुनों ने खूब मारा पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कर्नाटक में संदल और मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस होने के ज़राए इब्लाग में लगाए जाने वाले मुसलसिल इल्ज़ामात से बरहम रियासत कर्नाटक में रुकन असेंबली व साबिक़ वज़ीर BZ ज़मीर अहमद खान ने कहा कि मुसलमान होने की वजह से इनके सियासी मुखालिफिन इन्हें निशाना बना रहे हैं। ज़मीर अहमद खान नेशनल ट्रैवल्स के मालिक हैं। इसके अलावा इनकी तिजारती सरगर्मियाँ कई मुकामात बशमुल मुंबई तक वसी है। अपने मुखालिफिन पर बरहमी का इजहार करते हुए ज़मीर खान ने ऐलान किया कि अगर मंशियात के रैकेट में इनकी शमूलियत का एक छोटा सा भी सबूत पुलिस फराहम करती है तो वो अपनी सारी जायदाद हुकूमत के हवाले कर देंगे और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत और शिवसेना के दरमियान तनाज़ा दिन ब दिन तोल पकड़ता जा रहा है। BMC के जरिए दफ्तर का एक हिस्सा तोड़े जाने से नाराज कंगना जहां उद्धव के खिलाफ सख्त तेवर इख्तियार किए हुए हैं, वहीं अयोध्या के साधु संत भी इनकी हिमायत में खड़े हो गए हैं और उद्धव ठाकरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कई संतों, खुसूसी तौर पर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने उद्धव ठाकरे की मुखालिफत शुरू कर दी है और इन्हें मुतनबा किया है कि वो अयोध्या में कदम ना रखें, क्योंकि यहाँ इनका इस्तकबाल करने की जगह इनके खिलाफ नारे लगेंगे। मीडिया ज़राए से मौसूल हुई खबरों के मुताबिक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सरबराह महंत नरेंद्र गिरी ने भी कंगना रनावत के हक में अपनी आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कंगना को हिंदुस्तान की बेटी करार देते हुए उद्धव ठाकरे को अयोध्या न आने की धमकी दी। मशहूर समाजी रहनुमा, आर्य समाज के बड़े नेता और बंधुआ मजदूर मुक्ति आंदोलन की पहचान स्वामी अग्निवेश जी के इंतकाल एक बड़ा सानहा है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के सदर, वाइस चांसलर और मशहूर इस्लामी दानिश्वर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने किया। उन्होंने मजीद कहा कि वो सेकुलर इक़दार के पासदार थे और अदम तशद्दुद के ज़बरदस्त हामी व मुबल्लिग़ थे। मुझे इनके साथ एक ज़माने से मिलकर काम करने के कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर मौक़े मिले, जहाँ इनकी खूबियों, हिम्मत और जुर्रत ने मुझे बहुत मुतासिर किया। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कहा कि हम HIV एड्स के खिलाफ जंग में एक दूसरे के शरीकार थे और हिंदुस्तान में इसके लिए कायम करदा अलायंस के मुश्तरिका चेयरमैन भी रहे। स्वामी जी एक ऐसे मजहबी आलिम और दानिश्वर थे जो इंसानी दोस्ती, फ़िरक़ेवाराना हमआहंगी और आपसी भाईचारे के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद रहते थे। उन्होंने सियासत, मजहब, समाजी खिदमत और नशर व अशात के मैदानों में नुमायाँ खिदमत अंजाम दी। इनके उठ जाने से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर एक ऐसा खुला पैदा हुआ है जो आसानी से पुर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जस्टिस मार्कंडे काटजू ने जुम्मे को लंदन की वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में दिफाई गवाह के तौर पर पेश होते हुए कहा कि नीरव मोदी के खिलाफ हिंदुस्तान में मुनसिफाना मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में अदालती निज़ाम पूरी तरह तबाह हो चुका है। बैंक से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के बाद लंदन भाग जाने वाले नीरव मोदी केस में मजिस्ट्रेट की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत के दौरान साबिक़ जस्टिस काटजू ने कहा कि अगर हीरे के कारोबारी नीरव मोदी को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया तो हिंदुस्तान में इन पर मुनसिफाना तरीके से मुकदमा नहीं चल पाएगा। काटजू ने कहा कि हिंदुस्तान में अदालती निज़ाम तबाह हो गया है। राजस्थान में अजमेर वाक़े ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर 5.5 माह के तवील अरसे के बाद नमाज जुमा अदा की गई। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के बाद गुज़िश्ता 7 सितंबर को दरगाह आम लोगों के लिए खोल दिया गया और लॉकडाउन के बाद पहली बार जुमे की नमाज अदा की गई। पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत को घेरने की अपोजिशन की तैयारी शुरू हो गई है। वज़ीर ख़ारजा हुकूमत हिंद एस जयशंकर की चीनी हम मनसब से बातचीत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवीसी ने सख्त तनकीद की है। कहा, क्या 1000 स्क्वायर किलोमीटर वाली ज़मीन चीन को सौंप दी जाए? राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत बताए कि आखिर चीन से ज़मीन की वापसी के लिए क्या मंसूबा बनाया गया है। चीन की दरअंदाजी का मामला अब पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत को घेरने की अपोजिशन की तैयारी है। शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी दिल्ली मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने नमाज जुमा से कबल अपने खिताब में मुसलमानों से अपील की कि मुकम्मल यकसुई और इखलास के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करने की आदत डाल लें और 5 वक्ता नमाज़ों के साथ साथ नवाफिल पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह गैबी मदद ज़रूर आएगी। आजकल के हालात से मायूस और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना भी अल्लाह का अजाब है जिससे तरक्की याफ्ता ममालिक और बड़ी ताकतें भी
सख्त परेशान हैं। हिंदुस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है। रोज रिकॉर्ड तोड़ केसेस सामने आ रहे हैं। कल ही दिल्ली में पिछले 72 दिनों का रिकॉर्ड टूटा है और भारत में तकरीबन 90,000 केसेस हर रोज निकल रहे हैं। अल्लाह ताला इस मौजी मर्ज से सबको महफूज रखे। कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पानीपत में कुरुक्षेत्र के इलाके पीपली पहुंचे और किसानों से मुलाकात करके इनके मसाइल सुने। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता रोज किसानों ने मरकजी हुकूमत के 3 ज़रई बिलों के खिलाफ इसी इलाके में मुजाहरा किया था और शाहराह आम को जाम किया था। इस मौके पर सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया नुमाइंदों के सामने एक तस्वीर पेश की जिसमें किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है और लाठीचार्ज करने वाला पुलिस वर्दी में नहीं बल्कि आम पोशाक पैंट और टी शर्ट में है। सुरजेवाला ने कहा कि ये लाठीचार्ज पुलिस वाले कर रहे हैं या बीजेपी के गुंडे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों पर जुल्म हुआ है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, बहुत से किसान इसमें जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ कानून के दायरे में रहकर सभी को एहतजाज करने का हक हासिल है। बहरीन ने भी आखिरकार इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वसीतर सिफारती मुहिम के तहत इजराइल को तस्लीम करने के लिए अरब ममालिक को राग़िब करने की भरपूर कोशिश की गई। ट्रंप ने बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा और इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर सैरुकी बातचीत करते हुए इस बात का ऐलान किया कि एक और तारीखी पेशरफ्त हुई है। बहरीन भी इजराइल को तस्लीम करने वाले अरब ममालिक में शामिल हो गया है। अमेरिका, बहरीन और इजराइल के कायदीन ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि मशरिक़ सतह में अमन को फ़रोग़ देने के लिए एक और तारीखी पेशरफ्त हुई है। मुत्तहिदा अरब इमारात की तरह बहरीन और इजराइल के दरमियान सिफारती, तिजारती और सिक्योरिटी ताल्लुकात इस्तेवार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के साइंसी व सकाफती इदारा यूनेस्को में पहली बार सऊदी अरब को तंजीम का रुकन मुंतखब किया गया है। सिफारती और सकाफती मैदान में आलमी सतह पर यह सऊदी अरब की एक बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। यूनेस्को का इजलास 10 सितंबर को फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में तंजीम के सदर दफ्तर में शुरू हुआ, जो 12 सितंबर तक जारी रहेगा। इजलास में 178 ममालिक के मंदोबीन ने शिरकत की। सऊदी अरब की तरफ से इजलास में यूनेस्को में सऊदीया की मुस्तकिल मंदोबा शहजादी हैफा बिनते अब्दुल अजीज़ आल मुकर्रन ने एक वफ्द के हमरा शिरकत की है। यूनेस्को में इस नई पेशरफ्त के बाद सऊदी अरब बैक वक्त 3 बुनियादी कमेटियों में रुकनियत हासिल करने में कामयाब हो गया। तेलंगाना हुकूमत ने गैर मिजाज लेआउट के तहत मौजूद अराजियात को बाकायदा बनाने की स्कीम का ऐलान किया है, जिसके तहत न सिर्फ मुकम्मल लेआउट बल्कि इनफरादी प्लाट्स को बाकायदा बनाने की सहूलत हासिल रहेगी। हुकूमत की इस स्कीम के तहत रोजाना बड़ी तादाद में दरख्वास्तें दाखिल की जा रही है, लेकिन शहरी इलाकों खास तौर पर हैदराबाद में मुतवस्सित तबकात के लिए ये स्कीम भारी बोझ साबित हो सकती है। शहर और ख़ास तौर पर ऐसे इलाके जहाँ पर मुस्लिम काबिल लिहाज आबादी है, वहाँ ज़्यादातर लेआउट हुकूमत के गैर मंजूरा हैं और लेआउट मालिकीन के तयक़ुन पर अवाम ने अपनी मेहनत की कमाई के जरिए अराजी हासिल की है। हुकूमत की इस स्कीम से अदम इस्तेफादे की सूरत में अराजी मालिकीन को मुस्तक़बिल में कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। स्कीम के तहत अराजी को अगर बाकायदा नहीं बनाया गया तो अराजी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और तामीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बरक़ी और पानी का कनेक्शन हासिल नहीं होगा। ऐसे गैर मंजूरा लेआउट्स में प्लाट हासिल करने वाले अफराद की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, क्योंकि इन्हें अराजी को बाकायदा बनाने के लिए भारी रकम चुकानी पड़ेगी। कई इलाकों में सियासतदानों की जानिब से प्लॉटिंग की गई और हुकूमत से लेआउट की मंजूरी के बगैर अवाम को भरोसा दिलाकर अराजी फरोख्त कर दी गई। अब जबकि गैर मिजाज लेआउट्स को हुकूमत ने सहूलतों से महरूम करने का ऐलान किया है। प्लाट मालिकीन अराजी की मालियत के सिलसिले में परेशान हैं। लेआउट की अदम मंजूरी के सबब प्लाट की कीमत घट जाएगी और अगर वो बाकायदा बनाना चाहें तो इन्हें अराजी की मुकामी मालियत के एतबार से चालान की रकम अदा करनी होगी। ऐसे लेआउट मालिकीन जिन्होंने प्लॉट ओनर्स को भरोसा दिलाया था, अब वो खुद को तनाज़े से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना असेंबली में एक तारीखी फैसला करते हुए नए रेवेन्यू बिल्स को मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। बिलों की मंजूरी के साथ ही रियासत में अराजी नज़्म व नस्ख और रजिस्ट्रेशन के लिए राह हमवार हो जाएगी। लैंड एंड पट्टेदार पासबुक बिल्स 2020 में तेलंगाना के हुकूक तेलंगाना, एबॉलिशन ऑफ द पोस्ट विलेज रेवेन्यू ऑफिसर बिल 2020, तेलंगाना म्युनिसिपल लॉज अमेंडमेंट बिल्स 2020 को ज़ायदा 5 घंटे के मुबाहस के बाद किसी तब्दीली के बगैर मंजूर कर लिया गया। ये बिल रियासत में रेवेन्यू इस्लाहात लाने की जानिब पहला कदम है। इससे मालिकीन अराजी को मिल्कियत का हक हासिल हो जाएगा और रियासत में आरजी तनाज़ात खत्म हो जाएंगे। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने वक्फ और इंडोमेंट अराजियात को नए रेवेन्यू एक्ट के तहत शामिल करते हुए रजिस्ट्रेशन का अमल रोकने का ऐलान किया। असेंबली में नए कानून पर मुबाहस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हफ्ते को वो इस सिलसिले में बाकायदा अहकामात जारी कर देंगे। रियासत के तमाम रजिस्ट्रेशन दफातर में वक्फ और इंडोमेंट अराजियात को रजिस्ट्रेशन से मुस्तस्ना करार देते हुए वेबसाइट को लॉक कर दिया जाएगा। रियासत में अराजी के मुकम्मल सर्वे के बाद वक्फ और इंडोमेंट अराजियात के मौक़िफ़ को दोबारा तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हफ्ते से गज़ीट में शामिल कोई भी वक्फ अराजी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। बल्दिया और ग्राम पंचायत से तामीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही कोई NOC जारी होगा।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में टीआरएस और मजलिस को शिकस्त देने के लिए बोगस राय दही को रोकना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन से राय दही के दौरान चेहरा शनासी मशीन के इस्तेमाल की नुमाइंदगी की जानी चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद के सिलसिले में सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से तलब करदा जायजा इजलास में नामपल्ली इंचार्ज मोहम्मद फेरोज खान ने यह तजवीज़ पेश की, जिसकी तमाम कायदीन ने तायद की। उन्होंने बताया कि 6 माह कबल मलकाजगिरी के बाद बल्दी इंतखाबात में 10 मुकामात पर तजुर्बाती तौर पर चेहरा शनासी ऐप का इस्तेमाल किया गया था, जिसके नतीजे में बोगस राय दही पर काबू पाया जा सका। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में टीआरएस और मजलिस से मुकाबले के लिए ज़रूरी है कि चेहरा शनासी मशीन को मुतारिफ किया जाए। उन्होंने इस सिलसिले में रियासती और मरकजी इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी और ज़रूरत पड़ने पर अदालत से रुजू होने का मशवरा दिया। शंकर आचार्य विजेंद्र सरस्वती, जिन्हें चिन्नाजेर स्वामी के नाम से शोहरत हासिल है, आज बंदर आइल्स की एक मस्जिद में निकाह की तकरीब में शिरकत की। यह पहला मौका है जब चिन्नाजेर स्वामी किसी मस्जिद में दाखिल हुए। मस्जिद में निकाह के खुशगवार फरीज़े की तकमील से वो बेहद मुतासिर हुए और निकाह के तरीक़ेकार, एजाब व कबूल के अलावा मस्जिद में इमाम के मेंबर के बारे में मालूमात हासिल की। किसी मजहबी रहनुमा का मस्जिद में एहतराम के साथ शरीक होना और इस्लामी मालूमात ख़ास तौर पर नमाज के तरीक़े और इमाम की अहमियत से मुतालिक सवालात करना इनकी इस्लाम में दिलचस्पी को ज़ाहिर करता है। टीआरएस के क़ायद मोहम्मद अब्दुल रहीम सैफ़ी की दुख्तर का निकाह जुमे के दिन बाद नमाज असर रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पर वाक़ मस्जिद बकी में मुकर्रर था। चिन्नाजेर स्वामी और अब्दुल रहीम सैफ़ी में गहरी दोस्ती है, जिसके सबब वो निकाह में शिरकत के लिए मस्जिद पहुंच गए। तकरीब में मौजूद साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मस्जिद कमेटी के हमरा इस्तकबाल किया और इन्हें मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में नशिस्त का एहतमाम किया गया।